السلام علیکم ناظرین، ویلکم. آپ کو ہم خاص ایک شو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور یہ نشست جس میں آج ہمارے سارے ولنگ بیس کے پروفیشنلز کم و بیش لاہور سے موجود ہیں. علاوہ ازیں آپ جانتے ہیں کہ ولنگ بیس کی شاخیں جو ہے دوسرے شہروں میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، مگر آج لاہور میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کی صدارت میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ان عادات کی بات کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، زندگی ساز ہو سکتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں کافی مشہور ہے، اس لیے کہ اسٹیفن کوی نے ان پہ بہت کام کیا اور وہ اس کے موجد تھے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. ہم 7 ہیبٹس پہ یہ چھوٹا سا سیمینار ایک کر رہے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے، یہ ایک پرپز ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا. تو میں کہوں گا کہ فوری طور پر ہم شروع کر دیں اس سیمینار کو. اور آپ میں سے دونوں میں سے کون پہلے بات کریں؟ 7 ہیبٹس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 7 ہیبٹس ضروری کیوں ہیں. یہ ضروری اس لیے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے بات کی کانشینس کی، کہ انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ساتھ انسٹرکشنز مینول ضرور دیتا ہے ہمیں. تو جو انسان کا انسٹرکشنز مینول ہے وہ ہے اس کا ہیومن کانشینس. اور ہیومن کانشینس ہمارا کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ہمارے ہیبٹس کے تھرو، ہمارے بلیف سسٹمس کے تھرو. اور یہ جو 7 ہیبٹس ہیں یہ ہمارے پیراڈائمس پہ ہی کام کرتی ہیں، ہمارے بلیف سسٹمس کے اوپر ہی کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ ایک کوئی نیا نیولی میرڈ کپل تھا، اور ان کی شادی ہوئی، اور وہ جب ایک نئے گھر کے اندر انہوں نے اپنی رہائش قائم کی، تو ان کی جو کھڑکی تھی اس کھڑکی سے باہر سامنے ایک عورت جو تھی وہ روز کپڑے ڈالا کرتی تھی جب بھی وہ دھوتی تھی کپڑے. اور یہ جو میاں بیوی تھے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ڈسکشن ضرور کرتے تھے چیزوں کے بارے میں. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جو بیوی تھی، نیولی میرڈ کپل تھا، بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ جو سامنے والی عورت ہے کھڑکی سے باہر جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس کے کپڑے گندے کیوں ہیں، یہ گندے کپڑے کیوں تار پہ ڈالتی جا رہی ہے. ایک دن ایسا ہوا جب وہ اٹھی اور اپنے شوہر کے لیے ڈائننگ ہال کے اندر ناشتہ لے کر آئی، اور سرو کرتے ہوئے اس کو اپنا شوہر نہیں وہاں پہ ملا. اور اس نے ایک دم کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ آج جو وہ سامنے والی عورت ہے وہ کپڑے صاف ڈال رہی تار کے اوپر. تو وہ اس بات کو جان کر بڑا فیسینیٹ ہوئی اور خوش تھی آبویسلی. تو اس کا جب شوہر آیا اتنی دیر میں تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج اس عورت کو کیا ہوا، آج اس عورت نے بڑے کپڑے دھوئے ہیں اور صاف کپڑے. تو اس کے شوہر نے کہا ایکچولی وہ کپڑے گندے نہیں تھے، وہ ہماری کھڑکیاں گندی تھی، تو جو آج میں نے جا کے صاف کر ڈالی. تو جو پیراڈائمز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو جس لینس کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس لینس کے تھرو ہم اپنی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو 7 ہیبٹس ہیں ہمارے پیراڈائمز پہ ہی کام کرتی ہے. کہ ہیبٹ کی فارمولیشن کیسے ہوتی ہے، کہ کسی بھی قسم کی ہیبٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اس ہیبٹ کی ایک ڈیزائر پیدا ہو ضرور. اور ڈیزائر کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوگی ہے کسی ہیبٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ کے پاس اس ہیبٹ کا نالج بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ کے پاس اس ہیبٹ کے بارے میں ایک نالج ہو کہ آپ نے اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. پہلے تو ڈیزائر ہے کہ وائی ٹو ڈو، کہ آپ نے کرنا کیوں ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو اس کے بعد آپ سکلز کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. جس طرح سے سر ابراہم نے بہت اچھا سے ایکسپلین کیا کہ ہیبٹس ہماری کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، چونکہ ہمارا پیراڈائمز ہوتے ہیں، ہمارے بلیوز ہوتے ہیں، اور یہی بلیوز جو ہوتے ہیں ہمارے ایکشنز اور الٹیمیٹلی ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے شروع کرتے ہیں. تو جب ہم ہیبٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل 7 ہیبٹ کی ہم بات کرتے ہیں. فرسٹ 3 ہیبٹس وہ ہوتی ہیں جو ہماری پرائیویٹ ہوتی ہیں. ان کو اچیو کیے بغیر ہم اگلی ہیبٹس پہ موو نہیں کر سکتے. اس لیے موو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جب تک اپنے پہ کام نہیں کریں گے، ہم جو پبلک ریلیشن شپس ہیں یا پبلکلی ہمارے کام ہوتے ہیں ہم ان کو اچیو نہیں کر سکتے. تو شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو فرسٹ ہیبٹ ہے پرو ایکٹیو. تو پرو ایکٹیو ہیبٹ بیسیکلی اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں. پرو ایکٹیو لوگ جو بیسیکلی ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو دوسروں پہ بلیم نہیں کرتے، ہم رسپانسبلٹی اون کرتے ہیں. وہ چیزوں کو پہلے پری پلان جو ہیں وہ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پرو ایکٹیو لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو مشنز ہوتے ہیں ان کو خود سے لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں لفظ پرو کو ایکٹیو کے ساتھ ملایا ڈاکٹر اسٹیون کوی نے. پہلے یہ ڈکشنری میں نہیں تھا، اب اچھی ڈکشنریوں میں لفظ پرو ایکٹیو آتا ہے. آپ میڈیا میں بھی لفظ پرو ایکٹیو کافی سنتے ہیں. یہ 11th آور پہ چیزیں کرنے کی بجائے 7th آور پہ چیزیں کرنے کا معاملہ ہے. یہ تھوڑا قبل از وقت ہے، یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ فلائٹ ریڈی ہے اور آپ سامان پیک کر رہے ہیں. جب ہم پرو ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں، وقت سے پہلے کوئی کام شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انیشیٹو بھی لیں.
इनिशिएट कर दें. कई दफ़ा हम प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट वी कैन नॉट इनिशिएट इट. सो प्रोएक्टिविटी का एक हिस्सा इनिशिएटिव लेना भी, उसको आगाज करना भी है. कि इनिशिएट जरा अर्ली करना, तो ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल या एग्जेक्टिव स्किल भी है कि किसी चीज को शुरू करना ही हम इंसानों को बहुत मुश्किल लगता है. हम उसे थोड़ा टाल मटोल के साथ लेते हैं और आज का काम कल पे डालने का जो नजरिया है ये उसके बारे में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो कल का काम अगर आप आज करेंगे तो आने वाले दिन आसान होते चले जाएंगे. सेकेंड हैबिट है जो कि बिगिन विद द एंड इन माइंड के साथ है. इस हैबिट में बेसिकली एक मिशन स्टेटमेंट की बात की जाती है. मिशन स्टेटमेंट इस तरह से कि बिगिन विद द एंड इन माइंड में लोग यूजुअली इस तरह से अपने मिशन को लेकर चलते हैं कि उनका एक गोल होता है, वो अपनी लाइफ को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं. बिगिन विद द एंड इन माइंड से मुराद ये है कि अंजाम को पहले जरा सोच लें कि होगा क्या, अगर मैं ये करूँगा तो नतीजा मुमकिन तौर पर क्या निकलेगा. आगे हम बढ़ते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. इसमें बेसिकली वो बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ. ये जो हैबिट है ये हमारे टाइम क्वाड्रेंट के साथ हमें डील करती है कि जो लोग किस तरह से अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है उसको किस तरह से लेकर चलते हैं. इस हैबिट में बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि 4 टाइम क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें कुछ काम हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नॉट इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ नॉट अर्जेंट होते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं करते, हम अपने आप को तो बेसिकली चेंज जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ होता है, नॉट ये हम वर्ड पे करें कि अगर दुनिया चेंज होगी तो हम चेंज होंगे. प्रायोरिटाइज करने की बात है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स का जिक्र करते हैं स्टीवन कवी. जी कि आपकी जिंदगी में 4 खाने होते हैं जो जिनमें आप वक्त गुजारते हैं. यानी आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीजों में उलझे होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीजें बहुत इकट्ठी हुई होती हैं टाल मटोल की वजह से. तो ज्यादातर हमारा वक्त ऐसे कामों में गुजरता है जिसमें हमें अर्जेंसी होती है और उन चीजों की अहमियत भी बड़ी होती है. जैसे दांत में दर्द हो रहा है या कोई ऐसा मामला है कि अगर देर करेंगे तो तकलीफ बहुत होगी, तो ये चीजें प्रायोरिटी ले जाती हैं. और इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी वो चीजें जो जिंदगी बनाने वाली होती हैं, जिंदगी को आसान करने वाली होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होती, जैसे कि वर्जिश करना या मुतालिया करना या रिलेशनशिप्स बनाना, तो इनको हम कल पे डालते रहते हैं. क्योंकि इनको थोड़ा कल पे डाला जा सकता है तो ये हमेशा होने से रह जाती हैं. और तीसरी चीज तो ये होती है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे कि बिला वजह हर वक्त सेल फोन को देखते रहना कि जरा बेल बजी तो फौरी तौर पर अपना काम छोड़ के तो सेल फोन को ओपन करके देखा कि क्या नई चीजें आई हैं, तो जो कि वजाहत अर्जेंट लगती है लेकिन उसमें से ज्यादातर चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं. क्योंकि जब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हम सब काम करने लगते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आते हैं. तो जब टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आते हैं कि कौन सा काम करें और कौन सा काम छोड़ें, तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट सामने आ जाती है आपकी मदद के लिए कि अच्छा ये काम जो है मैं किसी और के हवाले कर देता हूँ या किसी और को सिखा देता हूँ, जिसे हम डेलीगेट करना कहते हैं, और ये काम मैं खुद कर लेता हूँ. और कभी भी इस वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि सारे काम मैं खुद ही अच्छे कर सकता हूँ और मेरे साथी काम नहीं कर सकते. ये दुनिया एक टीम वर्क है. ह्यूमन बीइंग वाहिद जानवर है जो एक दूसरे की बेपनाह मदद करते हैं. बाकी जानदार एक इनफरादी जिंदगी गुजारते हैं. जो फर्स्ट 3 हैबिट्स थी ये थी प्राइवेट विक्ट्री पर, और जब तक आप प्राइवेट विक्ट्री पर काम नहीं कर सकते आप पब्लिक विक्ट्री पे भी काम नहीं कर सकते. और मैं बात करूंगा पब्लिक विक्ट्री की हैबिट्स पे, जो कि हैबिट नंबर 4 है. ये कहती है थिंक विन विन. ये जो पब्लिक विक्ट्री है ये दूसरों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, जैसे विन विन है तो इसका मतलब है कि दूसरे लोगों के साथ हम कैसे लेन देन करते हैं. बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड अदर्स का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये पब्लिक के साथ हमारा एडवेंचर शुरू होता है. और इसका बहुत सा दारोमदार हमारी प्राइवेट विक्ट्री का या जाती नशो नुमा, जिसे पर्सनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या करेक्टर एथिक पे कैसे काम करते हैं, जैसे अपनी जिम्मेदारियों का उठाना और अपने ज़ात में एक मनसूबाबंदी करना, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाना, अपने फ़राइज़ मंसूबी को समझना. अगर आप
विन विन डील पे नहीं पहुंच सकते तो फिर आप अभी डील ना करें, बल्कि आप फर्दर उस पर गौर फिक्र करें और नए नुकात तलाश करके लाएं ताकि आपके और किसी के दरमियान विन विन डील हो जाए। असर्टिवनेस की भी जरूरत होती है कि हम बातचीत करते हुए बीच में लूज टॉक ना करें, हम खामखा उलझने की कोशिश ना करें, हम रद्द अमल ना दें। जो रिएक्टिव अप्रोच है इससे भी मामला कई दफा बहुत खराब हो जाते हैं और मामला को हमेशा जो सतह है उलझनों की उसको नीचे लाने की तमन्ना होनी चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और दूसरे को इश्तार भी नहीं दिलाना चाहिए। और हम दूसरे से सवाल कर सकते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस तरह। अच्छा, टेल मी मोर अबाउट इट। अच्छा, आप कैसे मुतमिन होंगे और इसमें आपका मुतबादल नुक्ता नजर क्या है, या अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्लान बी आपका क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि इन सारी बातों से पहले एक अबंडेंस मेंटालिटी का होना जरूरी है विन विन के लिए, कि हम इस चीज पे ट्रूली बिलीव करते हों कि हम सारे ही विन कर सकते हैं। जिंदगी में किसी एक का विनर और एक का लूजर होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हमारी जो वैल्यूज या इंटेग्रिटी जो है वो भी हमें मैनेज करने की जरूरत है कि हम कुछ वैल्यूज पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हों, बजाय कि हम कुछ लेने या कुछ देने पे बिलीव करने की तरफ जाएं। अच्छा, मैं फिफ्थ हैबिट पे बात करना चाहूंगा। फिफ्थ हैबिट पे बात करने से पहले मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हम इंसानों के अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीजें एक्टिवेटेड नहीं होती, हमें लगता है हमें वो चीजें सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, किसी भी किस्म का आर्ट या किसी भी किस्म का कोई नया स्किल, किसी भी किस्म की कोई एबिलिटी, क्योंकि ये जो सीखने की चीजें होते हैं, ये जो स्किल्स होते हैं, ये हमेशा आपको बाहर से आपको अपने आप को करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट चीजें एक्टिवेटेड होती है, जैसे हमारी 5 सेंसेस, उसके अंदर हमारी एक बोलने की सेंस है, एक हमारी सुनने की सेंस है, और ये जो फिफ्थ हैबिट है ये हमारी सुनने की सेंस पर ही फोकस है, जो कि कम्युनिकेशन पर काम करती है, जो कि कहती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप अक्सर लोगों को कंप्लेन करते हुए सुनेंगे कि उसने ये ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा कैसे सोच भी कैसे सकता था। लेकिन अगर हम पहले बार में उसको इंसान को सही से एम्पैथेटिकली सुन लेते तो आपको उसकी सोच में, उसके बात में ये बात मिल जाती कि उसने ऐसा क्यों सोचा, उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमारी जो लिस्ट, अब मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा कि जो हमारे जो लिसनिंग स्टाइल्स होते हैं, जो कि एक्चुअली पुअर लिसनिंग स्टाइल्स होते हैं, जब भी हम किसी को ऐसा कंप्लेन करते हुए पाते हैं कि उस इंसान ने ऐसा सोचा भी कैसे और ऐसा कहा भी कैसे, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड जो लिसनिंग स्टाइल होता है उससे ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि अपने पर्सपेक्टिव से हमेशा चीज़ों को देख रहा होता है। हमें ज़रूरत है कि हमें एम्पैथेटिक जो लिसनिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, उसको सीखने की हमें ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम बचपन से हमारे कान में आवाज़ पड़ जाती है तो इसलिए हमें इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमने कैसे सुनना है चीज़ों को, कैसे बोलना है। वैसे ही हमें एम्पैथेटिक जो लिसनिंग स्टाइल है इसको कल्टीवेट करने की जरूरत है, जिसके अंदर जब आपको इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो आपने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। हम अक्सर औकात ऐसा करते हैं जिनमें से एक पूअर लिसनिंग स्टाइल ये है कि स्पेसिंग आउट। हम हमेशा वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। अक्सर ऐसा स्कूल की क्लासेज में ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। इसी तरह एक और पूअर लिसनिंग स्टाइल है जिसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, कि हम अपने मतलब की सिर्फ बात सुनते हैं। अगर कोई इंसान आपको बता रहा है कि मेरी टांग टूटी और मैं CMH चलेगी और वहाँ पे डॉक्टर ने और मुझे काफी पूरा दिन वहाँ पे लग गया, और लेकिन आप बीच में से उसकी सिर्फ ये बात पकड़ते हैं वो CMH की, और आप उसे तस्करा करने लग जाते हैं वो CMH में फलाने डॉक्टर है, वो मेरे जानने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है उस इंसान का क्या हाल होगा जब वो जो आपको अपना दर्द बता रहा है? ऑब्वियसली आपको उसके साथ एक कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हो जाएगा, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। और ये जो फिफ्थ हैबिट है ये उसी वर्ड को भरने के लिए हमें कहती है। और उसको हम कैसे भर सकते हैं? वो एम्पैथेटिक लिसनिंग स्टाइल, और ये सीखने की चीज़ है, इसको आप कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आपके वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आपकी टोन इन्वॉल्व होती है, जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। जब हम किसी की बात सुने, जो आप एम्पैथेटिक लिसनिंग स्टाइल की बात कर रहे थे, तो दिल से सुने। इफ यू कैन इक्वेट टू इट, इफ यू कैन रियली, इफ यू इमर्स इनटू इट, if we are soaked into what the other person is saying, then we will really understand. अच्छा, जो कोई कुछ कह रहा है आप वो भी सुने, और जो कोई कुछ नहीं कह रहा आप वो भी सुन सकते हैं। बिटवीन द लाइंस आप उसके लफ्जों में झांक के अंदर भी देख सकते हैं। अगरचे हम दीवार के दूसरी जानिब तो नहीं देख सकते, लेकिन हम गुफ्तार की दूसरी जानिब देख सकते हैं। उसमें बॉडी लैंग्वेज पे जैसे
मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि लिसनिंग आई थिंक वो एक स्किल है जो हमें हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाते, और हम सभी को जिंदगी में कभी ना कभी ये गिला जरूर होता है कि दूसरे ने मुझे समझा नहीं। और हमारे पेशेंट्स भी ये अक्सर कंप्लेंट करते हैं अपने पेरेंट्स से, जो कि उनके पेरेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। लैंग्वेज सिखाने में हम अपने बच्चों को 4 से 5 साल का अरसा लगाते हैं और उन्हें छोटे छोटे वर्ड सिखाते हैं, फिर उन्हें फिक्रे बनाना सिखाते हैं, फिर उन्हें कंप्लीट सेंटेंसेस की तरफ हम लेकर जाते हैं। और कम से कम जुबान सीखने में 4 से 5 साल का अरसा लगता है। और ये वो जुबान नहीं होती जो कि वो कोई आला कॉन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सके, कि वो जुबान है जो एवरीडे यूज के अंदर उनको कुछ सहूलत फराहम करती है। लेकिन हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाते कि दूसरे की बात सुनी कैसे जाए, इवन पेरेंट्स की अपनी बात भी बच्चे कैसे सुने। तो ये वो एरिया है जो कि जिसके ऊपर कभी भी काम जिंदगी में नहीं होता अनटिल अनलेस हम कॉन्शियसली इसके ऊपर काम ना करें। जैसे एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात है कि हम पूरी तवज्जो से दूसरे की बात को सुनने की तरफ जाएं और हार्ट और आई के साथ कनेक्ट कर सकें उसके साथ। एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। यूजुअली होटल्स में आप जब जाते हैं तो रिसेप्शन पे जो खातून खड़ी होती हैं वो जरूर आपको बड़ा वेलकम करती हैं और अच्छे अंदाज में आपको गुड विशेस भी देती हैं। तो एक कोई बिजनेस एग्जेक्टिव थे जो कि शेयर कर रहे थे कि मैं जब गया तो मुझे लगा कि ये एक मैकेनिकल सा उनका अंदाज होता है कि हैव अ गुड डे सर एंड यू नो हाउ आर यू डूइंग, एक मैकेनिकल सा काम है। और वो गए और जब उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू डूइंग सर, तो उन्होंने बड़ा सीरियसली कहा कि मुझे रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ और मैं काफी तकलीफ में हूँ। एंड मीनवाइल वो कोई और काम कर रही थी और उन्होंने सुनने के बाद कहा गुड टू नो सर, हैव अ गुड डे। सो ये लिसनिंग का आलम है। ये ऐसे ही है बात जो शादियों में लोग आपके पास आते हैं कि आपको कोई चीज तो नहीं चाहिए और आप कहते हैं थोड़ा सा जर्दा ला दें और वो गायब हो जाए। लिसनिंग का ये आलम है। तरह के लोग भी होते हैं, अगर वो गायब भी हो जाए तो कहते हैं जाओ जरा उनको बुला के लाओ मेरा जर्दा मुझे। तो इसका मतलब है कि ये इस स्किल के ऊपर हमें खास तौर पे काम करने की जरूरत है, कॉन्शियसली काम करने की जरूरत है कि हम दूसरे की बात को ना सिर्फ सुनने की तरफ जाएं बल्कि समझने की तरफ जाएं और फिर उसको कोई रिस्पॉन्स करें। एक और चीज है कि दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करना, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, कि पहले समझना कि दूसरा जो बात कर रहा है तो वो आपको मौका दे रहा है कि वो आप उसके दिमाग में झांक के देख लें उसकी बातों के जरिए, या उसका लुबे लुबाब या उसका मुद्दा समझ लें। और रिलेशनशिप में इसकी बड़ी अहमियत है कि हम लोगों की बातों को बहुत तवज्जो से सुन लें। ये जो सुनना ना बात, सुने बगैर ही रिस्पॉन्ड कर देना, जिसे हम रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं कि दूसरे की बात काट के हम अपना नुक्ता नजर बयान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये जो हैबिट है हमारे काम आती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि दूसरा वो चीज चाह रहा हो जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होता और आपकी तमन्ना भी साथ पूरी होने का इम्कान पैदा हो रहा हो। तो ऐसे सोल्यूशन ढूंढना जो कि म्यूचुअली विन विन होना, उसके लिए लाजिम है कि हम पहले समझने की कोशिश करें कि दूसरा चाहता क्या है, फिर हम उसकी जगह होके सोचें, उसके शूज में जाके सोचें कि किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी सोच के अंदर क्या है, या उसका गोल क्या है, या उसका मकसद क्या है। और दूसरे के शूज में जाने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि दूसरे के शूज आपको मिल जाते हैं। सिनर्जी ये है तालमेल बनाना, टीम वर्क करना और अकेले गोल करने की कोशिश ना करना। सब लोगों की तमन्नाएं एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं और इससे सिनर्जी पैदा होती है। यानी सिनर्जी का मतलब यह है कि दो लोगों की एफर्ट्स का मिल जाना या ज्यादा लोगों की एफर्ट्स का मिल जाना। अगर आप देखें तो माजी में आप सुनते हैं कि रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया था, फलां चीज फलां ने इजाद की थी, लेकिन अब दुनिया में हर रोज चीजें इजाद होती हैं पर किसी का नाम नहीं आता क्योंकि अब टीम वर्क होता है। मेरे ख्याल में आप में से मुझे कोई ये भी नहीं बता सकेगा कि सेल फोन किसने इजाद किया था, क्योंकि उसमें किसी एक बंदे की एफर्ट नहीं थी, वो एक टीम थी जिन्होंने सेल फोन या स्मार्टफोन बनाया। और इस तरह की जितनी इजादें अब रोज हो रही हैं वो टीम वर्क की वजह से हो रही है, इसलिए इजादें भी ज्यादा हो रही हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, उनके फवायद भी बेहतर है। जबकि पुराने जमाने में अकेले ही हीरो बनने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती थी। पुराने जमाने में सिनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अब दुनिया में बेहतर नजरियात की अफजाइश हो रही है और यूनाइटेड नेशन में इसका बहुत बड़ा हाल। अगर हम ये कहें कि अब कंपटीशन की बजाय लोगों को कोऑपरेशन की तरफ ये आदत जो है वो माइल करने की तरफ जाती है, तो आई थिंक ये ज्यादा। हाँ, अब ये कहा जाता है कि कंपटीशन आपका सिर्फ आपके साथ है कि कल आप कैसे थे आज आपसे बेहतर हो,
को ऑपरेशन से मुराद असल में ये ली जाती है कि मैं आपके लिए ऑपरेट करूं और आप मेरे लिए ऑपरेट करें, इसे विन विन डील कहा जाएगा। और सिनर्जी भी इससे अगला स्टेप है कि जब आपको पता होता है कि आप छोटे छोटे पास दे के बहुत अच्छे तरीके से आसानी से गोल कर सकते हैं, और अगर आप अकेले गोल करने की कोशिश करेंगे तो आप नजरों में आ जाएंगे और दूसरा आपको गोल करने से रोक सकता है। लेकिन अगर आप मुनासिब मदद लेंगे यहाँ से या वहाँ से, और अपने कोलीग्स के साथ आप तालमेल बना के रखेंगे, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ या अहले खाना के साथ या बीवी या खामद के साथ तालमेल बना के रखेंगे, तो छोटी छोटी खुशियां आप एक दूसरे को दे सकेंगे। आप इस तरफ भी तवज्जो देते हैं कि पहली आदत पे ज्यादा जोर दें और फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और आप एट द सेम टाइम पहली आदत पे काम करते हुए आप सातवीं आदत यानी शार्पन द सॉ उस पे भी तवज्जो देते हैं। तो ये आपके मन का सौदा है कि किसी दिन आप कौन सी आदत पे तवज्जो देना चाहते हैं, या किसी दिन हमारी जिंदगी में ज्यादा वाइडली इम्पोर्टेंट गोल कौन सा है और हमने क्या करना है। और ये जब हमें आदत हो जाती है तो हम हर मौके पे, हर सिचुएशन में उस सिचुएशन को 7 हैबिट्स के साथ स्कैन कर लेते हैं, और वो स्कैनिंग जो है बहुत फास्ट हो सकती है। जैसे कि विद इन 3-4 सेकेंड आप सातों की सातों आदतों से गुजर जाएं। आप सोचें कि क्या ये जो मेरा इस वक्त का रवैया है ये प्रोएक्टिव रवैया है, क्या मैंने अंजाम सोच लिया है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्या मेरी प्रायोरिटी ये यही है और ये विन विन है उस फर्क के हवाले से जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, और क्या मैंने उसकी बात तवज्जो से सुन ली है, और क्या मुझे किसका, इसका या उसका तावन चाहिए। अगर बच्चे को समझाना है तो उसके बहन भाइयों का या उसकी वालदा का तावन चाहिए, और फिर अगर मुझे इस मामले को डील करना है तो मुझे कुछ मालूमात ताज़ा भी चाहिए, और मुझे गूगल पे जाना पड़ेगा या यूट्यूब पे जाना पड़ेगा या कोई किताब खोल के देखनी पड़ेगी। तो सातों आदतों में से आप गुजरेंगे। फिर आप देखते हैं कि क्या ये प्रिंसिपल सेंटर्ड है, क्या ये किसी प्रिंसिपल के तहत चल रही है बात, क्या ये शरअ के मुताबिक है, क्या ये अखलाक के मुताबिक है, क्या ये हुकूमत वक्त के कानून के मुताबिक है, या हमारे खानदान की रस्म और रिवाज और परंपरा के मुताबिक है। तो ये सब चीजों पे हम तेजी से नजर डाल सकते हैं, और फिर हम आगे कदम बढ़ाते हैं, फिर हम वो करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उससे नफा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर उससे नफा हुआ तो अच्छी बात है, हम आइंदा भी वैसे ही करेंगे। अगर उससे नुकसान हुआ तो हम सोचेंगे वापस जाके कि उस प्रिंसिपल में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है। प्रिंसिपल बजाते खुद कोई बहुत सीक्रेट चीज नहीं होती, जब तक वो मुफीद रहे, वो हमारे लिए कारआमद रहे तो ठीक है, वरना हम प्रिंसिपल को बदल देते हैं। दुनिया में आइन बदलते हैं, दुनिया में कवानीन बदलते हैं, इज्तिहाद होता है, तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। बद आदतों में से जो सबसे बद आदत है वो तशरीफ रखने की आदत है, कि कहीं बैठे हैं तो फिर उठ के नहीं दे रहे, कोई काम करना है तो करके नहीं दे रहे। तो हमारे जितने भी काम होते हैं उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कोई हिस्सा मैकेनिकल होता है जो रह जाता है। तो ये जो आदत हैं, अगर आप इनको देखें तो ये किस तरह मोतियों की तरह पुरोई हुई आदत हैं, और आप एक आदत में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आप दूसरी आदत की तरफ तवज्जो देते हैं, तो आपकी तवज्जो खुद ब खुद इस फिलॉसफी को अच्छी तरह से अपना लेती है, और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। और ये एक पर्पस है इन आदतों को डेवलप करना, ये गोल नहीं है, ये कभी अचीव नहीं होगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप बेहतर और कामयाब इंसान बनते रहेंगे, लेकिन हमेशा जब आप माजी की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले की निस्बत आप इन आदतों को ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको हर मौके पे ये फैसला करना पड़े कि मुझे क्या करना है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मौकों पे ये सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल सेंटर्ड हैं तो आपने फिर पहले से सोच के रखा हुआ है कि किस मौके पे आप करेंगे। अगर आपका प्रिंसिपल है कि आपने सुर्ख सिग्नल को नहीं काटना, चाहे रात के 2:30 बजे कोई ट्रैफिक ना हो और किसी कांस्टेबल का डर ना हो, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल सेंटर्ड है तो आपको पहले से एक चश्मे की तरह पहनने की आदत होगी। अगर आपका प्रिंसिपल विन विन है तो आप फितरी तौर पर किसी से भी बातचीत करते हुए उसकी तरफ झुकाव होगा, विन विन की तरफ झुकाव होगा, जिससे रंजिशें पैदा नहीं होंगी। तो ये जो प्रिंसिपल सेंटर्ड होना है कि
آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے ہمیشہ اسی انداز میں کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے نہیں کرنی، جیسے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی کسی پہ شاؤٹ نہیں کرنا، کبھی آپ نے کسی کو ارادتاً تکلیف نہیں دینی. آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ تکلیف دینے سے کسی میں سدھار آ جائے گا، جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یا کسی کی بے عزتی کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. ضرور آتی ہے بے عزتی کرنے سے تبدیلی، لیکن وہ بری تبدیلی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں پہ سڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے، انہیں گریسفلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے تنگ دستی میں، یعنی مالی حالات اگر کمزور ہوں تو ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن جو بہت سی مفت کی چیزیں ہیں وہ ہم ویسے ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے ہمارے لاہور میں کتنے خوبصورت باغات ہیں، اور لوگوں کے اندر کتنا کم رجحان ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا. اس پہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، آپ وہاں جا کے ریلیکس کر سکتے ہیں، آپ اونرشپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے. تو بعض اوقات جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں ان پہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو یہ جو سرکل آف کنسرن ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سرکل آف انفلوئنس ہمارا پھیل بھی سکتا ہے، ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے. سو انسرٹنٹی کا سامنا ہو، یا ان مینیجبلٹی کا سامنا ہو، یا ان کنٹرولبلٹی کا سامنا ہو، یا انپریڈکٹیبلٹی کا سامنا ہو، تو یہ ہمارے سرکل آف کنسرنس کے اندر آتا ہے، جس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا، ایک ہوکا بھر کے، ایک سانس بھر کے کہنا ہاں یہ تو ہے، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور اگر ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ زیادہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی اپنی ابیلٹیز کو بڑھاتے ہیں، اپنی اسکلس کو بڑھاتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم سرکل آف انفلوئنس کنسرن کے اندر سے بہت ساری چیزیں کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ورک اون می فرسٹ، یعنی اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا، جو ہم اپنی ذات کے اوپر کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہم ہر وقت آج کل لوگ بہت، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، اور دوسروں کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنا. ورکنگ آن می فرسٹ کا جو فارمولا ہے، اگر ہمارا کسی سے کانفلکٹ ہو، کسی پارٹنر سے یا بھائی سے یا ماں باپ سے، تو دوسرے پہ ہمارا چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا اور ہمیں اس سے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن سولوشن ہمیشہ نکلے گا، یا سولوشن کا آغاز ہوگا ورکنگ آن می فرسٹ کے اوپر اگر ہم توجہ دیں گے. سو یہ اس طرف بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے ڈاکٹر اسٹیون کوی کی فلسفی سے، کہ پرائرٹائز اگر ہم کرتے ہیں، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، کسی اور کو بدلنے کی بجائے پہلے میں اپنے آپ کو بدل لوں، تو اس سے میرے خیال میں چیزوں کا آغاز ہو سکتا ہے. دنیا میں میری نظر میں سب سے کامیاب پروگرام ایڈکشن سے ریکوری کا بھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، اور یہ فطری ایک سولوشن ہے علتوں کا، کہ اگر ہمیں دنیا میں کافی زیادہ علتوں کا سامنا ہے جو ہم سب کو ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں علتوں کا سامنا ہوتا ہے. بعض اوقات تو ہماری مت ماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری مت ماری ہوئی ہے، اور ہم غلط ایئرپورٹوں پر شاندار لینڈنگز کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اندازے نہیں ہوتے، اور پھر داد و تحسین چاہتے ہیں، تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری تعریف کرے. تو 7 ہیبٹس ایک ایسا یعنی سبجیکٹ ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو اگر ایک دفعہ ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں ہر وقت ول پاور کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، اور چونکہ ول پاور ایک ایسی دولت ہے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور ہمیں پھر نئی ول پاور درکار ہوتی ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں. تو جتنا ہم اس کو کنزرو کر لیں، جتنا محفوظ رکھ کے استعمال کریں، جتنا اس کو جمع زیادہ کریں اور استعمال کم کریں، تو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس طرح کے اور بھی سیشنز ہوتے رہیں گے جن میں ہم مزید ایکسپلور کریں گے، کیونکہ جو کام کی باتیں ہیں، مؤثر لوگوں کی جانی پہچانی آزمودہ باتیں ہیں، ان میں تو بہت سے گلہائے نمایاں ہوتے ہیں اور ان سے ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ابراہیم صاحب، مس نائلہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور انپٹ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ آج کے لیے. اور 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور پھر ویل موو آن ٹو دی 8th ہیبٹ سم ٹائم. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا جو ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ کے بارے میں. تو اس طرح کے انشاءاللہ ولنگ بیس کے فورم سے ہم آپ کے لیے جو ہے سیمینارز اور گیٹ ٹوگیدرز اینڈ ورک شاپس پیش کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے اپنا خیال رکھیے گا تاکہ آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.